Hi students, how are you all? How was your PT3 exam? Good, no? So students, today I'm going to begin new chapter number 9, reproduction. In this chapter we are going to study about the lots of things, students, which are I thought you have not heard before this, because reproduction and deeply how the reproduction occur in human beings is a new concept for you students. In last year you have discussed or study about the reproduction, sexual or sexual reproduction in plants you have seen, but in 8th class this is completely new concept for you. And this reproduction related to human being is a little bit confusing or little bit curious, means you're curious, of course, for this study. Whatever I have experience about the students, your seniors were might be told you that you will have this chapter, so you will have this chapter when your teacher is going to teach you in this way. I would like to suggest students, you have to take these things very casually, because what is meant by reproduction? Reproduction means to produce their offsprings. हमारी आगे की जनरेशन को प्रोड्यूस करना है, उनको इस दुनिया में लाना है. पेरेंट्स आर ब्रिंगिंग देम इन दिस ऑन दिस planet, in this universe. So this is very casual thing. You have to think, you have to just observe the slides and the concept. You have to hear me in this way. These are very natural, very candid things these are. So I hope students you will enjoy this video. On your screen you can see I have put the name reproduction and the picture of mother and her child, as well as animals also I have put over here. So just like plants or animals, the reproduction is happening the same way it is occur in human being also. Okay students, so what we are going to study in this lesson, that every point I have mentioned over here, you can go through it. I think for this lesson I have prepared 67 to 68 slides, so it would be possible I'll make 3 or 4 videos for this lesson. So I'm not going to read all this context. So sexual reproduction, male reproductive system, female reproductive system, in this way we are going to study. First of all, we will go through the definition. Exactly what is meant by reproduction. Reproduction means nothing but it is a process of producing young ones. ये क्या है, reproduction क्या है? जो अपना अगला जो जनरेशन होता है उसको इस planet पे लाना है. Parents are bringing them on this planet by some mechanism, and that is called as reproduction. As simple as, very simple. Then what is the importance of reproduction? Reproduction is very very important in all the context, because to survive on this planet it is not possible without reproduction, because young ones or offspring, or in general we are calling it next generation, वो कैसे, how it is come on this planet, to though they're coming on this planet by this reproduction. So reproduction is important because without it species would not survive over time. Of course, you can imagine, suppose you can imagine your grandparents, how many years they are on this planet, their parents, I think 80 or 90 years. More than 100 years rarely human beings are survive on this planet. So when we are talking about the human being, this species, definitely without reproduction there is no survival of human beings or anything which is reproducing in this way. It is not possible. Individuals must reproduce to ensure that they will continue on over generation of time. As I said, हम जो बोलते हैं next generation, next. So over generation, if we want to survive on this planet, definitely reproduction is the only one way. Now, the next topic is what are the types of reproduction? So according to the way reproduction is divided into two types: asexual reproduction and sexual reproduction.
Asexual reproduction is the reproduction in which only single parent is sufficient to reproduce their offspring. Okay, there is no need of both the parents. One parent can reproduce the next one, their young one. And in sexual reproduction, both the parents are involved, and the reproduction in organisms by the union of male and female sex cell. So male cell, that is gamete, उसे जो मेल सेल फीमेल सेल हम उसे गैमेट बोलते हैं. मेल सेल को हम स्पर्म बोलते हैं, फीमेल सेल को हम एग्स बोलते हैं. सो दे इन्वॉल्व एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फॉर्म होता है, फिर उसको फिटस के फॉर्म में आता है, एंड फिर उसके बाद उसका यंग वन इस दुनिया में आता है. दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. So these are two types of reproduction. Now we will discuss about, first of all we will see little bit about the asexual reproduction. So as I said, asexual reproduction is a reproduction in which single parent is involved. I would like to elaborate this asexual reproduction with the example of Hydra. So whatever the picture is displayed over here, that is of Hydra. In this asexual reproduction, offsprings is produced from body parts. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, बॉडी पार्ट्स में से ही उनका यंग वन बनता है, अदर देन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का रोल नहीं है, बट इसमें क्या है कि उनका बॉडी पार्ट इज एक्ट एज अ रिप्रोडक्टिव, एज लाइक अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यू नो. सो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, इट इज सीन इन लोअर प्लांट्स एंड एनिमल्स. कुछ प्लांट्स में, कुछ एनिमल्स में ये देखा जाता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने एग्जाम्पल हाइड्रा का मैंने एग्जाम्पल दिया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी इन फर्स्ट इमेज देयर इज द इमेज ऑफ हाइड्रा. हाइड्रा का इमेज है, एंड इट हैज़, उसको कैसे है, एक कॉर्नर पे डिफरेंट स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड इन फर्स्ट इमेज, इन सेकेंड इमेज, एंड दैट सेकेंड, ये जो सेकेंड इमेज में है, ये जो डिफरेंट पार्ट वाला जो स्ट्रक्चर था, इट इज डेवलप, इट स्टार्ट डेवलप एज एक जो इंडिविजुअल हाइड्रा बनने के लिए जो प्रोसेस होती है, दैट इज कंटिन्यू. सेकेंड में वो हो रहा है, थर्ड में और डेवलप हो गया, फोर्थ में उसका क्या हो गया, वो सेपरेट हो गया, फोर्थ इमेज में वो सेपरेट हो गया. द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड इज clone of parent. Now features, what are the features of this asexual reproduction? इसमें क्या है, so it is uniparental, एक ही parent sufficient है. offspring जो produce हो रहा है, that is same just like a parent के जैसा ही offspring होता है. every character, जो parent में character है, वो सभी character वो offspring में आते हैं. इट इज़ फास्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बहुत जल्दी हो जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. विद इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड दिस रिप्रोडक्शन हैपन्स. इफ आई वुड लाइक टू कंपेयर इट विथ ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स का क्या है, एटलीस्ट 9 months and 9 days रिक्वायर्ड फॉर दैट fetus, for that embryo in mother womb, है ना, मदर मम्मी के इसमें एम्ब्रियो सैक में 9 months से ज़्यादा वो बच्चा रहना चाहिए, तब जाके वो उसका जो आइडियल डेवलपमेंट होके वो बाहर आता है. वैसे इसमें इतना टाइम नहीं लगता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द, वो बडिंग था. नाउ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देखेंगे. बाइनरी फिशन, ये बाइनरी फिशन है. फिशन मीन्स क्या, बाइनरी मीन्स क्या, बाय मीन्स टू एंड फिशन मीन्स टू ब्रेक. ओके, सो it is a type of asexual reproduction when a parent cell splits into two daughter cells. क्या होता है, parent cell, एक parent cell है, एग्जाम्पल अमीबा का एग्जाम्पल है. अमीबा ले लिया, एंड क्या हो गया, अमीबा का जो फर्स्ट डायग्राम में यू कैन से दिस इज पेरेंट सेल, ये पेरेंट सेल है, एंड उसका व्हेन डेवलप हो जाता है, एंड व्हेन द टाइम कम, जब उसका टाइम आ जाता है कि एक पेरेंट सेल से 2 पेरेंट सेल बनना है, तो इन दिस वे वॉट एवर शोइंग ओवर हियर कि क्या हो जाता है कि वो जो एक न्यूक्लियस है, 1 न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 2 सेम cells, and that is binary fission. The example is
given on your screen. So steps involved in binary fission. कैसे होता है ये binary fission? First it grows in size. पहले क्या हो जाएगा, उसका साइज ग्रो हो जाएगा. देन न्यूक्लियर मटेरियल डबल्स. ये जो मैंने बोला था न्यूक्लियस के अंदर का जो मटेरियल है वो डबल हो जाएगा. एंड देन कॉन्स्ट्रिक्शन अपीयर्स एंड देन सेपरेशन होता है एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग. नाउ we will move towards asexual reproduction के 2 examples I have explained over here. एक हाइड्रा का एक्सप्लेन किया, एक अमीबा का एक्सप्लेन किया. अमीबा is reproduced by the method of binary fission. Now we will move towards main part. main part क्या है हमारा? We are going to study sexual reproduction in human being. So this sexual reproduction is in it offspring is produced due to involvement of टू सेक्स मीन्स ऑपोजिट सेक्स. जैसे मेल एंड फीमेल का इन्वॉल्वमेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, दैट इज मेल एंड फीमेल एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फीचर्स, इसके फीचर्स क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट इज़ बाई पैरेंटल. हाइड्रा का एंड अमीबा का हमने देखा था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दैट इज यूनी पैरेंटल. एंड ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इट इज़ बाई पैरेंटल. टू सेक्सेस आर इन्वॉल्व as like male and female, so that's why it is biparental. The offspring produced inherits. ये जो offspring means क्या, यंग वंस. जैसे मेल एंड फीमेल एक साथ आने के बाद जो ऑफस्प्रिंग आ रहा है, जो बच्चा आ रहा है, इन दैट ऑफस्प्रिंग सम कैरेक्टर्स फ्रॉम मदर एंड सम कैरेक्टर्स फ्रॉम फादर इज कमिंग. ओके, उन दोनों के आ जाते हैं कैरेक्टर्स. इनहेरिट्स मीन्स क्या, आपके पेरेंट्स में से आप में आना, दैट इज इनहेरिडेटरी जो बोलते हैं, अनुवंशिकता जो बोलते हैं, इनहेरिट्स सम कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स एंड सम न्यू कैरेक्टर्स. कुछ मम्मी के आएंगे, कुछ पापा के आएंगे एंड कुछ न्यू कैरेक्टर्स ऑल्सो आएंगे. सो द ऑफस्प्रिंग और द यंग वन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द दैट एनी वन विच इज प्रेजेंट ऑन दिस प्लैनेट. क्या हो जाता है कि वो उसका सम कैरेक्टरिस्टिक्स यू कैन सी कि आंखें मम्मी जैसी है, बाल पापा जैसे है, स्किन दादी जैसा है, बट कुछ चीज़ें ऐसी रहेगी, दैट इज समथिंग डिफरेंट. ओके, सो ये जो ऑफस्प्रिंग बन रहा है दैट इज नॉट क्लोन. क्लोन किस में होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन होता है, मीन्स सेम एज लाइक पेरेंट. ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दिस ऑफस्प्रिंग इज डिफरेंट. इट बिकॉज इट हैज of course inheritance from the mother, father and some different characters. That's why now it is fusion of gametes that fertilization takes place. So इसका जो features है उसमें second feature ये है कि it is the fusion of gametes. Gametes means क्या? Gametes किसे बोलते हैं? Gametes means male cell and female cell, उसे हम gametes बोलते हैं. मेल सेल स्पर्म है, फीमेल सेल एग है. सो इनका फर्टिलाइजेशन होता है, वो दे कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ, वहाँ पे क्या हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा. सो एंड फिर उसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. एग है जो पर्पल कलर में है, दैट इज राउंड बॉल, दैट इज एग एंड उसके साइड में जस्ट नियर बाय इट स्पर्म्स, वो स्पर्म्स है. इट टेल लाइक स्ट्रक्चर है, हेड है उसको. सो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, so definitely it is the sexual reproduction, so male and female required. Now first of all we will start from the gonads. Gonads क्या है? The reproductive organs of organism. Reproductive organ of organism is called as gonads. Okay, first of all we will discuss about the male reproductive system. So we will discuss male gonad. Male gonad means male reproductive system. So गैमिट्स, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है? गैमिट्स है. गैमिट्स हम किसे बोलते हैं? गैमिट्स मीन्स रिप्रोडक्टिव सेल. सो मेल सेल, फीमेल सेल. मेल सेल में स्पर्म्स हैं एंड फीमेल सेल में एग है. सो
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस इज द फर्स्ट पार्ट, मेल गैमेट्स स्पर्म होती है, एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज डिस्प्ले ओवर हियर, यहाँ पे दिया हुआ है. सो वेरी साइंटिफिकली यू हैव टू थिंक अबाउट इट. And then this is female gonad. Female gonad means reproductive organ. So female reproductive system, the picture is also displayed over here. फीमेल रिप्रोडक्टिव गोनाड क्या है? ओवरीज है. दिस गैमेट्स गिव्स, वो क्या देते हैं? ओवरीज में से हमें क्या मिलता है? एग मिलता है, और जिसे हम वो गैमेट को हम ओवम या एग बोलते हैं. इट हैज़ बॉल लाइक स्ट्रक्चर, राउंड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज एग. सो फीमेल गोनाड क्या है? ओवम और एग. मेल गोनाड क्या है? स्पर्म है. ओके. नाउ फर्टिलाइजेशन, स्टेज 1. फर्टिलाइजेशन का फर्स्ट स्टेज क्या है? इट इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टू प्रोड्यूस फर्स्ट सेल, दैट जाइगोट. क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव, मेल एंड फीमेल का जो गैमिट्स है टू प्रोड्यूस फर्स्ट सेल, उनका क्या हो जाता है? फिजिकली कांटेक्ट हो जाता है, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. सो ये स्पर्म जो है दैट इज यूनिसेल्युलर, एग जो है दैट इज ऑल्सो यूनिसेल्युलर, एंड ये दोनों का कॉन्टैक्ट आके you can see on your screen, egg के just nearby it sperms are moving over there. The first sperm, actually there is competition between the sperms में competition होता है, which one is reach first to this ovum or egg. जो पहले पहुंच जाता है वो fertilization करके there is formation of zygote. Male gonad, that is testis which gives gametes, that is sperm. फीमेल गोनाड दैट इज गिव्स एग्स, एंड देर इज, उन दोनों का जब कॉन्टैक्ट आके देर इज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. द फ्यूजन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल कंटेन्ड इन द गैमेट्स टू फॉर्म अ जाइगोट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, एंड वो जो गैमेट बनने का प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन. जाइगोट इज द फर्टिलाइज्ड एग और ओवम. इट इज अ सिंगल सेल. ये जो है जाइगोट क्या है? सिंगल सेल है. स्पर्म इज यूनिसेल्युलर, एग इज ऑल्सो यूनिसेल्युलर. उनका फर्टिलाइजेशन होकर जो जाइगोट बनता है दैट इज ऑल्सो यूनिसेल्युलर. thus we begin our life as a single cell. तो हमारा लाइफ कहाँ से स्टार्ट होता है? सिंगल सेल से होता है, बिकॉज zygote is a unicellular. Now types of fertilization. How many types of fertilization is there? There are two types of fertilization. First one is the external fertilization. Second one is the internal fertilization. External बाहर हो रहा है, internal अंदर हो रहा है. Okay. So internal fertilization which takes place inside the body. बॉडी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है बॉडी ऑफ द फीमेल, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, डॉग्स, काउज, बर्ड्स एक्सेट्रा, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन. बॉडी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है हम उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है. द फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस और प्रोड्यूस आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. एंड एग्जाम्पल्स फिश, फ्रॉग्स, इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यू कैन सी. नाउ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जैसे मैंने एज ए सेड फिश में है, फ्रॉग्स में है, इन दिस इसमें ये कैसे होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी. इन दिस फर्टिलाइजेशन मेल रिलीज स्पर्म, इसमें क्या है मेल स्पर्म रिलीज करते हैं एंड फीमेल ले एग्स. फीमेल जो है एग्स देगी, ये जो इनके मेल जो है वो स्पर्म्स रिलीज करेंगे एंड the fusion of egg and sperm takes place outside parents body. So इसमें क्या हो रहा है एक्वाइटिक ऑर्गेनिज्म, फ्रॉग का एग्जाम्पल दिया हुआ है, इवन फिश का भी एग्जाम्पल है. तो इसमें फीमेल अंडे देगी, मेल स्पर्म रिलीज करेगा, उनके बॉडी के बाहर इनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा. स्पर्म टेक्स प्लेस आउटसाइड पेरेंट्स बॉडी एंड द फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म, इनका जो फ्यूजन हो रहा है वो आउटसाइड द बॉडी ऑफ पेरेंट्स हो रहा है. दैट्स वाई दिस इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. आई होप यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. ह्यूमन बींग में वी आर गोइंग टू स्टडी, हम इसमें डिटेल स्टडी करने वाले हैं. बट ह्यूमन बींग में क्या होता है, वो जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बॉडी में होता है
एंड ये जो फीमेल है वो कैरी करती है वो एम्ब्रियो फीटस एंड ऑल दैट थिंग्स. सो वो फर्टिलाइजेशन बॉडी में होता है. दैट्स वाई दिस इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन. फिश एंड फ्रॉग का मैंने एग्जाम्पल दे दिया. जनरली एक्वाटिक एनिमल्स में ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल है. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, आई होप यू अंडरस्टूड कि ये बाहर हो रहा है इनके बॉडी के. दैट्स वाई दिस इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. नाउ इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एज आई सेड ह्यूमन बींग में हो रहा है, दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन. इसमें क्या है, जाइगोट, फर्स्ट सेल फॉर्म्ड आफ्टर फ्यूजन. क्या हो गया, ये जो मेल गोनाड्स जो है जिसने स्पर्म दे दिया, इवन फीमेल गोनाड्स के पास एग है. ये जो स्पर्म आएगा वो एग को फर्टिलाइज करेगा. देर इज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. यूनिसेल्युलर स्पर्म यूनिसेल्युलर, एग और ओहम यूनिसेल्युलर, फर्टिलाइजेशन हो गया. जाइगोट जो बन गया दैट इज ऑल्सो यूनिसेल्युलर. फर्स्ट सेल फॉर्म्ड आफ्टर फ्यूजन. ये फ्यूजन होने के बाद फर्स्ट सेल जो बन गया दैट इज जाइगोट. देन एम्ब्रियो. ये जो जाइगोट है वो फर्टिलाइजेशन हो गया. ओके, दैट इज जाइगोट. उसके बाद जो स्टेप है दैट स्टेप इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो. जैसे गर्भ बोलते हैं, एम्ब्रियो मीन्स गर्भ. Ball of cells arised from single celled जाइगोट. जाइगोट का फिर यूनिसेल्युलर से बाइसेल्युलर, बाइसेल्युलर से टेट्रासेल्युलर, टेट्रासेल्युलर से ऑक्टोसेल्युलर, ये ऐसे क्या हो जाएगा, सेल डिवीजन हो रहा है. ओके, जाइगोट का सेल डिवीजन होके देयर इज फॉर्मेशन, बॉल लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसे हम एम्ब्रियो बोलेंगे. कुछ दिनों के बाद ये डेवलप हो जाता है. दिस एम्ब्रियो इज, आफ्टर सम डेज दिस एम्ब्रियो इज कन्वर्टेड इनटू फीटस. ओके, एम्ब्रियो जो है वो सिर्फ सेल का बॉल लाइक स्ट्रक्चर था. यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन ऑल्सो, छोटे 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 ऐसे जो होता है दैट इज एम्ब्रियो. फिर वो फीटस में आ जाएगा. डेवलपिंग बेबी आफ्टर 8 वीक्स. 4 वीक का 1 मंथ होता है. जैसे फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो द प्रोसेस इन विच 2 मंथ्स के बाद जो बनेगा बॉडी में, फीमेल बॉडी में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वी विल कॉल इट, हम उसे फीटस बोलेंगे. उसके पहले वो एम्ब्रियो है. ओके, जाइगोट के बाद वो एम्ब्रियो स्टेज में आ जाता है. फीटस डेवलपिंग बेबी आफ्टर 8 वीक्स ऑफ फर्टिलाइजेशन. तो वो दैट इज कॉल्ड एज फीटस. उसे हम फीटस बोलेंगे. एंड जब इट इज़ फुल्ली डेवलप हो जाएगा, 9 मंथ का हो जाएगा, उसे हम इन्फंट बोलेंगे. जनरली 9 मंथ्स 9 डेज दिस इज द आइडियल टाइम है ना. उसके बाद द बेबी इज रेडी टू कम in this nature, you know, and that is called as infant. हम उसे infant बोलते हैं. A baby with fully developed organs. Now डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट. जाइगोट का डेवलपमेंट कैसे हो गया, एट वंस मैं थोड़ा सा रीड करके आप लोगों को बताती हूँ. तो जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल्स. ओके, जो मैंने बोला द सेम थिंग ओवर ईयर एज इट पासिस फ्रॉम द फैल्यूपियन ट्यूब. दैट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस है ना. हम जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, ऑल दिस things will come. And for your knowledge you can pause over here, you can read it again. मैंने जो explain किया same thing I have given over here. Now you can see on your screen, very interesting. First is the zygote fertilization. स्पर्म आया, एग को फर्टिलाइज किया उसने, देर इज फॉर्मेशन ऑफ सिंगल सेल दैट इज जाइगोट. देन 2 वीक्स के बाद दैट इज ये जाइगोट से एम्ब्रियो 2 मंथ्स तक उसे हम क्या बोलते हैं, वो एम्ब्रियो रहता है. 2 मंथ्स के बाद इट इज़ कन्वर्टेड इनटू फीटस. फिर धीरे धीरे उनके हाथ बनना, पैर बनना, देन ब्रेन, हार्ट, ये सब डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा. उससे हम फीटस बोलते हैं. एंड ये 2 वीक्स के बाद का है, ये 2 मंथ के बाद का फीटस है. एंड फीटस के बाद 9 मंथ्स, फीटस के बाद 7 मंथ रहेंगे है ना. फीटस तो हमने 2 मंथ्स के बाद उसको फीटस कहा, वी हैव कंसिडर्ड इट. आफ्टर दैट 2 मंथ्स 7 मंथ और लगेंगे एंड देन it is converted into, then it is developed into infant. You can see on your screen how adorable the pig is. So this was the first video lecture. Very fundamental things I have explained over here. I think students you have enjoyed it. In coming 2-3 videos, more interesting things I would like to share with you. So I think students you will be curious for the videos, upcoming videos. Thank you for watching my video. Bye bye, take care.